My precious friend, Jesus loves you. मेरे प्रिय मित्र, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। No devil is greater than Jesus. कोई भी शैतान यीशु से बड़ा नहीं है। Jesus has said, in my name you will cast out devils. यीशु ने कहा है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। But Jesus loves everybody. लेकिन यीशु हर एक से प्रेम करते हैं। He has no favorites. वो उसके कोई पसंदीदा नहीं। He has given his life for everyone. उसने अपना जीवन हर एक के लिए दिया है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। You may be in the worst situation, चाहे आप सबसे बुरी स्थिति में क्यों ना हो, worst circumstance in life. जीवन के सबसे बुरे हाल में क्यों ना हो। You may say, I am full of evil. आप कह सकते हैं मैं बुराई से भरा हुआ हूँ। Doesn't matter. कोई बात नहीं, God loves you. ईश्वर आपसे प्रेम करता है। और आप भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के संदेश को सुने, He will never forsake you. जो उन्होंने रायपुर प्रार्थना महोत्सव में दिया था, There is hope for you in Jesus. और अपने जीवनों में परमेश्वर से संतावना को प्राप्त कर आनंद से भरपूर हो जाएं। We greet you and thank God for every one of you who are watching this program. May God bless you and grant you miracles as these friends receive miracles. In Hebrews chapter 13 and verse 5, और इब्रानी 13:5 में लिखा है, God has given us a promise परमेश्वर ने ये वायदा किया है, saying, I will never leave you. वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, I will never forget you. मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, I'll never forsake you. मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा भी This नहीं। is God's promise for you. ये परमेश्वर का वायदा आपके लिए है। The Lord will not forsake you so that no man will be able to stand before you. और प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपके विरोध खड़ा भी नहीं हो पाएगा। Joshua 1:5, यहोशू 1:5 में लिखा है, surely, निश्चित तौर पे, surely, निश्चित तौर पे I will not forsake you. मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। I don't want any man to stand before you. मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति आपके विरोध में खड़े I हो। want you to be above all people. मैं चाहता हूँ कि आप सबको उसमें बने रहे। Why? क्यों? I want you to be a blessing to everybody with my love. मैं चाहता हूँ कि आप सबों को अपने प्यार से बांध दें। He told Joshua, उसने यहोशू से कहा, Joshua, यहोशू, I will never leave you, I will never forsake you. मैं तुम्हें ना तो त्यागूंगा ना तुम्हें छोड़ूंगा, Because you have to lead the people. क्योंकि तुम्हें लोगों को अगुवाई करना है। No man should be able to stand before you, but you should lead all people. कोई लोग तुम्हारे विरोध में खड़े नहीं हो पाएंगे, तुम लोगों की अगुवाई करोगे। For that, what does God do? इसके लिए प्रभु क्या करता है? According to Daniel 1:31, और दानियल नबी की पुस्तक 1 उस हिसाब God से gave 10 times wisdom to Daniel परमेश्वर ने 10 गुना बुद्धिमत्ता दानियल को दिया, and his friends. उसके मित्रों को। You know, they were prisoners वे लोग बंधुआई में थे, in a foreign country, विदेश में, but God was with them. लेकिन प्रभु उनके साथ God था। never forsook them. प्रभु उनको कभी नहीं त्यागा। Even though they were prisoners, वे कैदी तो जरूर थे, God never forsook them. लेकिन प्रभु उनको नहीं छोड़ा। He was with them. वो उनके साथ था And he gave them 10 times wisdom. और उनको 10 गुना बुद्धि दिया। Their wisdom was much more than the wisdom of all the magicians of the land. उस जगह के हर एक प्रकार के जादूगरों से ज्यादा बुद्धि उनके अंदर में थी। All the wise people of the world. दुनिया के सब बुद्धिमानों से ज्यादा So the बुद्धिमान king थे। saw that राजा ने इस बात को and देखा raised these prisoners to the national level. और इन कैदियों को एक राष्ट्रीय नेता बना दिया। Yes, that is how God is going to show that he has not forsaken you. और इस बात से प्रभु बताएगा कि वो आपको नहीं छोड़ा है। In Luke 21 and verse 15, लूका में लिखा है, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I will give you words and wisdom मैं तुम्हें बुद्धि और वचन का सब दूंगा, so that no man in the world will be able to stand before you. ताकि कोई भी तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। Jesus wants his children to rise up to the top so that they can care for all people with the love of Jesus in the nation. यीशु मसीह चाहता कि अपने बच्चों को ऐसी बुद्धि दे कि वो राष्ट्रीय स्तर पे खड़े हो सकें। And for that he gives them wisdom.
और इसलिए उनको वो बुद्धि देता है। In Matthew 13:54, और मत्ती उसका 13 उसका when 54 Jesus में spoke to the people, यीशु मसीह ने लोगों से कहा, the people of his town said, उसके लोगों ने कहा, शहर "Oh, के he's a carpenter. अरे ये तो बढ़ाई का पुत्र है, He's only a ये carpenter." तो सिर्फ बढ़ाई है। But with what wisdom he is speaking, लेकिन कैसे बुद्धि से बोल रहा है, and what wisdom he calls out the names of the people. लोगों के नाम को बुद्धि के साथ बोलता है। Truly he is the Son of God. सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र होगा। They tremble before him. वो लोग उसके सामने कांपे। Matthew 7:28 and 29. मत्ती 7 उसका 28 और They 29 में tremble लिखा, before him. वो उसके सामने कांपते थे। You may be a carpenter. हो सकता आप एक बढ़ाई You के may काम be a करते हो, technician. हो सकता तकनीकी व्यक्ति You हो, may be in the lower levels of society. हो सकता आप समाज के निचले Or दर्जे you में may हो, be in the middle level. हो सकता आप मध्य You may वर्गीय be in the हो, high हो level. सकता ऊंचे हो, But yet maybe you are frustrated in life. हो सकता जीवन से हताश हो। Today Jesus wants to show that he has not forsaken you. आज यीशु आपको बताना चाहता है वो आपको नहीं You may त्यागा। be a student. हो सकता आप विद्यार्थी You हो, may be a हो worker. सकता काम करने You वाले may हो, say, आप कहेंगे, "Brother, I'm earning money, but the money doesn't stand. आप बोलते भाई मैं पैसा कमाता हूँ, पैसा टिकता नहीं, I'm in debt. मैं कर्ज में हूँ, I have no hope." मेरे पास आशा But नहीं। today, लेकिन आज God wants to show that he has not forsaken you. परमेश्वर ये बताना चाहता है कि वो आपको So he नहीं छोड़ा, fill you with his wisdom. अपने बुद्धि से भरेगा। The wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि, That is the one which will lift you up in this world. और वही एक ऐसी बात है जो आपको दुनिया में उठाएगा। With that wisdom, और उस बुद्धि से God will keep you on top परमेश्वर आपको ऊंचा रखेगा। to show he has not forsaken you. ये बात बताएगा कि आपको नहीं You छोड़ा, will be a blessing to other people. आप लोगों के लिए आशीष का कारण Many होंगे। years ago, कई साल पहले my father was working in the bank. मेरे पिता बैंक में काम करते थे, He was a clerk. वो क्लर्क थे, Then he became an officer. तब वो अधिकारी बने, And then he had to go to the next position. तब उनको ऊंचा अधिकारी बनना था। The man above him उसके ऊपर में जो व्यक्ति था, became jealous of him उनसे वो जलने लगा, because he didn't belong to his group. क्योंकि वो उसके विभाग के नहीं थे। So he wrote wrong things उसने गलत बातों को लिखा and he cut off his name in the promotion list. और उसने तरक्की होने के स्थान में उसके नाम को हटा दिया। This list went to the top officer, the chief general manager. और वहां पे चीफ जनरल मैनेजर के पास ये सूची गया And he said, और उसने कहा, "Why only this man's name is cut off?" क्यों सिर्फ ये आदमी का नाम हटा दिया And he गया। called my father. उसने मेरे पिता को He बुलाया, never knew him before. उसको कभी नहीं जानता था। When he asked my father many things concerning the bank status, और जब बैंक के संबंधित बहुत सारी बातों को जो मेरे पिता से पूछा, the Holy Spirit rose up within my father. मेरे पिता के अंदर पवित्र आत्मा जाग गया And the Holy Spirit spoke banking through him. और पवित्र आत्मा के जरिए वो बैंक की बातों को बोलने लगे। And he gave figures after figures after figures. और उन्होंने इतने आंकड़े दिए, आंकड़े के बाद आंकड़े And he दिए, spoke about his performance. और अपने जो उन्होंने कार्य किया Just उसकी like बोला, that. ऐसे ही बोल दिया। Top man was amazed. और वो ऊंचा अधिकारी आश्चर्य हो He said, गया। "How dare they remove your name from the list?" उन्होंने कहा किसकी हिम्मत हुई कि तुम्हारे नाम को इस सूची से हटाएं। And he called my father's boss. उसने मेरे पिता के बॉस को बुलाया And the chief general manager made his father's boss, my father's boss, himself to write my father's name again in the promotion list as the first name in the list. और ऐसे कि चीफ जनरल मैनेजर ने कहा जो उसके नाम काटा था इसका नाम पहले उस सूची में डालो और लिखवाया। And it didn't stop there. और वहीं पे नहीं रुका And he said, और उसने कहा Dinakaran should be in my council, in my meeting every Monday morning in the top officers council. और उसने कहा कि दिनकरन को हर एक सोमवार को जब मेरा उच्च स्तरीय बैठक होता है उनको यहाँ पे होना है। Then he knew that my father was praying for other people. और तब वो जान गए कि उनके पिता दूसरों के लिए प्रार्थना So करते every हैं। time a decision has to be taken, he will say, "What does brother Dinakaran say about this banking problem?" और ऐसे कि जब कोई निर्णय लेना होता था तो वो बोलते थे भाई दिनकरन इस परेशानी के बारे में क्या सोचते हैं। And he kept my father for 13 years in the head office itself. और वो 13 साल तक जो मुख्य कार्यालय था मेरे पिताजी को वहां रखा गया। Of course, he was transferred. Every chief general manager kept him
in the high position. और उनका हर समय स्थानांतरण हुआ, लेकिन हर एक चीफ जनरल मैनेजर उनको अपने साथ रखा Because of God's wisdom. परमेश्वर के बुद्धि की वजह And से, through that he could help so many people. और उसकी वजह से उसने कईयों की सहायता The की, ministry also grew simultaneously. और उसी के साथ साथ सेवकाई भी बढ़ने God will लगा। help you. प्रभु आपकी सहायता No करेगा। wicked man can stand up against you. कोई बुरा व्यक्ति आपके विरोध खड़ा नहीं हो God will सकता। show that he has not forsaken you. परमेश्वर ये बात को बताएगा, उसने give you आपको नहीं छोड़ा, wisdom. आपको बुद्धि देगा। And not only wisdom for you to survive, सिर्फ आपको बुद्धि नहीं देगा कि आप जीवित but he रहें, will give you wisdom to make the whole world survive through you. और वो ऐसी बुद्धि देगा आपके जरिए पूरा दुनिया जिएगी। God gave the spirit of wisdom to Joseph. और यूसुफ को परमेश्वर ने बुद्धि दी, Genesis 41:38. और उत्पत्ति 41 उसका 38। Joseph could know how to grow food. और यूसुफ को मालूम था कैसे खाद्य पदार्थ को बढ़ाया जाए। 7 years he grew food. 7 साल तक उसने अच्छी खेती बाड़ी करवाई, Joseph had wisdom and revelation from God to preserve food for 14 years. और कैसे वो आने वाले सालों में कैसे खाद्यान्न को सुरक्षित रखे, प्रभु ने उसको बुद्धि दिया। And God gave him wisdom to know how to distribute food to his nation and to other nations. और तब परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया कि कैसे खाद्यान्न पदार्थ को अपने लोगों और दूसरे देशों के लोगों को दिया जाए। And God gave him the wisdom to generate wealth for his country. और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया कि उसके जरिए अपने देश के लिए वो कैसे धन को इकट्ठा करें। God made him save the whole world और परमेश्वर उसके जरिए पूरे विश्व को through बचा the लिया, wisdom that he gave him. जो बुद्धि प्रभु ने उसको दिया था। Joseph was taken from the prison यूसुफ जेल से लिया गया था and brought to the head of the country और देश के प्रमुख स्थान में लाया because गया of the wisdom of God. परमेश्वर के बुद्धि की वजह से। That wisdom comes through the Holy और Spirit. वो बुद्धि पवित्र आत्मा के जरिए आता है। Colossians 2:3 says, गुलूसी 2 उसका 6 में लिखा in है, the Holy Spirit are treasures of wisdom and knowledge. और पवित्र आत्मा में धन की और उसकी बुद्धि की Today, संपूर्णता my है। young friend, आज मेरे जवान बच्चों, my dear friend who says, I'm in the end of the road, और जो जवान लोग कहते हैं मैं अपने रोड के आखिरी I'm क्षण not में able to हूं, work, मैं काम नहीं कर सकता, my business is failing, मेरा व्यापार समाप्त हो whatever रहा है, I earn, I'm not having in my hands, जो कुछ मैं कमाता हूँ मेरे हाथ में नहीं रहता, I'm not able to study, मैं पढ़ नहीं सकता, and there is quarrel in my family. मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े If हैं। you say, I have no future, यदि आप कहते हैं आपके पास भविष्य नहीं, don't be afraid. मत डरिए, Don't say God has forsaken ये you. मत बोलिए प्रभु ने भूल गया। Today, आज God is ready to fill you with His Holy Spirit. प्रभु आपको अपने पवित्र आत्मा से भरेगा। The same Holy Spirit with which He filled Joseph when he was in the prison itself. और जब यूसुफ जेल में था, जो बुद्धि प्रभु ने उसको दिया वही बुद्धि देगा। God will open your understanding. परमेश्वर आपके समझ को You will खोलेगा, have the wisdom of God. आपके पास परमेश्वर की बुद्धि God होगी। will show you how you can make India prosper, प्रभु आपको बताएगा कैसे हमारा देश तरक्की करे, Chhattisgarh prosper, कैसे छत्तीसगढ़ उन्नति करे, Raipur prosper. कैसे रायपुर उन्नति करे। God will give you the wisdom. परमेश्वर आपको बुद्धि He देगा, will make you stand before kings through that wisdom. आपको इन बुद्धि के जरिए राजाओं के सामने खड़ा You will करेगा। tell them, आप उसको this बताएंगे, is what God हे says. प्रभु कहता है। Yes, my friends. हाँ मेरे प्रिय And they मित्र, will honor you वे आपको इज्जत देंगे and say, और कहेंगे you shall be the ruler of the people. तुम लोगों के ऊपर अधिकारी होगे। Yes, it is time that God's people rise up to leadership और ये समय है कि प्रभु के लोग एक खड़े हो जाए अगुवे by the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ by में, the power of God's Holy Spirit. परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ में, now. अभी इसी समय। Yes, my friends. हाँ प्रिय मित्र, God will show that He has not forsaken you. परमेश्वर आपको बताएगा उसने आपको नहीं He'll छोड़ा, give you His wisdom, आपको बुद्धि देगा, and you will have the wisdom of the nation, और आपके पास देश की बुद्धि wisdom to होगी, care for people. लोगों की चिंता करने का बुद्धि, And with that, you will rise up to the national level. और उसके साथ आप राष्ट्रीय स्तर पे खड़े होंगे। How does it come? कैसे होता है? Acts 2:17 says, प्रेरितों के काम 1:17 में in लिखा the है, last days, अंत के दिनों में I will pour my Holy Spirit upon all flesh. मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों के ऊपर मैं Your उंडेलूंगा, sons and daughters shall prophesy. तुम्हारे बेटे बेटे भविष्य
भविष्यवाणी करेंगे, and your young men shall see visions. तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, God will give you vision. परमेश्वर आपको God दर्शन will देगा। make you prophesy His plan for humanity. प्रभु मानव जाति के लिए आपके जरिए भविष्यवाणी कराएगा, Yes, for yourself आपके लिए, and for the nation देश के लिए, and for the people लोगों के लिए, and for your family आपके परिवार के and for लिए, the city, शहर के लिए, for your church. आपके कलीसिया God के will लिए। give you the wisdom to prophesy. प्रभु आपको बुद्धि देगा भविष्यवाणी करने When का, God's plan comes, और जब प्रभु की योजना आएगी, everybody will receive it. हर एक व्यक्ति पाएंगे, And through that you will bless the nation. और उसके जरिए देश आशीष God पाएगा। spoke to me प्रभु ने मुझसे कहा in September 2008. सितंबर 2008 में, My son, मेरे बेटे, establish a prayer tower near the seat of power in Delhi to pray 24 hours for the nation of India. दिल्ली में जो प्रमुख स्थान है, जब शक्ति का स्थान है, वहाँ पे एक ऐसा प्रे टावर बना जहाँ पे प्रार्थनाएं हो। When you begin to pray, जब तुम प्रार्थना करोगे, I will raise up the young people with the Holy Spirit. मैं ऐसे जवानों को खड़ा करूंगा जो पवित्र आत्मा से They shall have परिपूर्ण हो। visions. उनके पास दर्शन होंगे, Visions of technology, तकनीकी का दर्शन, visions in business, और व्यापार का दर्शन, visions in governance. और सरकार के पर And I will दर्शन। raise these young people, मैं इन जवानों को उठाऊंगा, and they shall go to the leadership of the country. और वो देश के प्रमुख अगुवे होंगे, They shall prophesy my solutions to the nation's problems. और देश के परेशानियों के लिए वो उनकी बातों को बोलेंगे, And some of them will become leaders. और कुछ लोग अगुवे बनेंगे, And the leaders will be led by them. और अगुवे उनके जरिए अगुवाई की Then- जाएंगे। तब When whatever I speak through them, जो कुछ भी मैं उनके जरिए when the बोलूं, nation does it, और जब दुनिया देश करेगा, the people shall prosper. लोग उन्नति करेंगे। This is the future of India. ये भारत का भविष्य है, And God is ready to use you, और परमेश्वर तैयार है आपको इस्तेमाल करने के लिए, raise you up उठाने के to लिए, great heights. आपको ऊंचाई में। And the Lord says in Isaiah 41:17, और ऐसा 41 उसका 17 में He will प्रभु never कहता है, forsake the poor and the needy. वो गरीब और अनाथों को नहीं छोड़ेगा। Doesn't want you to be poor. वो नहीं चाहता कि आप गरीब रहें, Doesn't want you to be needy. वो नहीं चाहता कि आप जरूरतमंद He is हो, ready to give you वो wisdom. आपको बुद्धि देगा। When God's wisdom comes into you, जब प्रभु की बुद्धि आपके अंदर verse आए, 18 says, और नीति वचन 18 में blessings लिखा will है, come like a river in your barrenness. आपके सूखेपन में आशीष बारिश के समान आएगी, Springs will come as a spring in the valley. और ऐसे की तराई में तब भर जाएंगे आशीष, And your life will be pools of water. You'll be a watered garden. और आप एक पानी के समान आशीषों का कारण बनेंगे। Right now, इसी समय you can rise up to the national level आप राष्ट्रीय स्तर पे उठ सकते हैं, through the prophetical anointing of God. परमेश्वर के भविष्यवाणी Through the wisdom के, of God. परमेश्वर के बुद्धि के You जरिए can have the wisdom from God. आप प्रभु से बुद्धि प्राप्त कर सकते Wisdom to हैं, run your home. अपने घर चलाने के लिए, Wisdom to do your business. अपने व्यापार करने के लिए, Wisdom to excel in your job. अपने काम में तरक्की पाने के लिए, Wisdom to bring blessings to your city. अपने शहर में आशीष लाने के लिए, Wisdom and prophetical guidance from God to bless the nation. देश को भविष्यवाणी के द्वारा देश को आशीष देने के God लिए will raise you up. प्रभु आपको ऊंचा Your life उठाएगा, will prosper. आपकी जिंदगी उन्नति That करेगी। is God's plan for you. ये प्रभु की योजना आपके लिए And for है, that He is ready to fill you with His own Spirit. और इससे वो आपको अपनी आत्मा से भरने के The लिए तैयार Holy है। Spirit. पवित्र आत्मा, How many of you are ready to receive God's Spirit in your life? कितने लोग प्रभु की आत्मा को पाने के लिए तैयार हैं? Can I see your hand? क्या मैं आपके हाथ को देख सकता Show हूँ? it to Jesus. यीशु को दिखाएं, Show it to यीशु को Jesus. दिखाएं। Yes. हाँ, God will honor you. परमेश्वर आपको इज्जत You may देगा। put down your hands. अपने हाथ नीचे You need रखें, not be poor. गरीब रहने की You जरूरत need नहीं। not feel forsaken. ये मत सोचिए कि लोगों ने You need त्याग not be किया, blind in this world. इस दुनिया में अंधा ना रहे। God is willing to open your eyes. प्रभु तैयार है आपके आंख को Make you खोलने, walk in the light. आप रोशनी में चलेंगे, Make you know His will. आप उसकी मर्जी को And जानेंगे do it. और करेंगे, Excel in your life. अपने जीवन में उन्नति प्राप्त Make this करेंगे, nation be blessed by God. और ये देश परमेश्वर के द्वारा आशीषित Lead the होगा। people to greatness. लोगों को ऊंचाइयों में लेके चले। Right now, He इसी समय is ready to come into your वो heart. तैयार है आपके दिल में आने के Jesus लिए। is ready to come into your heart. यीशु आपके दिल में आने के लिए He's तैयार ready है, to fill you with His Holy अपने Spirit. पवित्र आत्मा से भरने के लिए You will तैयार है। never feel forsaken. आप कभी भी अकेला You will महसूस नहीं never go पाएंगे। back as orphans. My friend, मेरे मित्र, the Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता Shall we है। pray to Him? आइए हम उससे प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्रेम स्वर्गीय पिताजी, please give a job to those who need a job. उन्हें जिन्हें नौकरी चाहिए, आप उन्हें एक नौकरी दें।
Please do a miracle today आज ही एक चमत्कार कर प्रभु जी, and give everyone who needs a job a beautiful job, Lord. और हर एक जिसको एक नौकरी चाहिए, आप एक अच्छी नौकरी दें प्रभु जी। Bless them with a job, आप उन्हें एक नौकरी की आशीष से आशीषित good करें, job, अच्छी नौकरी, secure job. एक सुरक्षित नौकरी, Give them the wisdom to shine in their jobs. और अपने कार्यों में चमकने के लिए आप उन्हें उचित ज्ञान दें In Jesus' name, यीशु के नाम में। you wicked devil, तुम जो दुष्टता की शक्ति हो, spoiling their jobs and their businesses. जो उनके कार्यों को और उनके व्यवसाय को नाश कर रहे I command you to leave them right now in Jesus' name. मैं उन्हें छोड़ने के लिए इसी समय तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। Father, पिताजी, if someone in the family needs a transfer for the family to be together, give it to them, Lord. Give it to them, Lord. जिन्हें अपने परिवार के साथ एक होने के लिए नौकरी में स्थानांतरण की आवश्यकता है, आप उन्हें वह स्थानांतरण दें प्रभु जी, In Jesus' name, यीशु के नाम में। give them this blessing. उन्हें यह आशीष दें। Father, पिताजी, please touch everyone who needs a healing and heal their bodies, Lord. जिन्हें भी चंगाई चाहिए, आप मेहरबानी से उन्हें छुएं और उनके शरीरों को चंगा करें प्रभु जी। I command every allergy to leave them in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूं कि हर एक प्रकार की एलर्जी यीशु के नाम से उन्हें छोड़कर चली जाए। Every asthma, हर एक अस्थमा, every diabetes, हर एक मधुमेह, every skin disease, हर एक चमड़ी का रोग be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, Be healed. चंगे हो जाओ, Dry up. सूख जाओ। Every cancer, हर एक कैंसर, every tumor, हर एक ट्यूमर every problem in the inner parts of the body. और शरीर के आंतरिक अंगों की हर एक समस्या Right now be healed. इसी समय चंगा हो In जाए Jesus' name. यीशु के नाम में। Father, give your people your presence. और प्रभु जी, आप अपने लोगों को अपनी उपस्थिति से भरें Let them never be sick again. और वे कभी भी बीमार न हो, Never again. कभी भी नहीं। I release them in Jesus' name. मैं यीशु के नाम से उन्हें आजाद करता हूँ। Let there be great peace in their life. उनके जीवन में महान शांति आ जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, Amen. आमीन। मेरा नाम कुंडय कंदुला है और पूना का मैं रहने वाला हूँ और आर्मी में डिफेंस में काम करता हूँ। मगर अब मैं प्रभु में मैं पहले से क्रिश्चियन है, मगर प्रभु में नहीं था ज़्यादा। और आर्मी में काम करते वगैरह क्या हो गया, मैं ऐसा हूँ प्रभु में नहीं था, मगर ज़्यादा दादागिरी, रफ फंडा बात करना, लोगों से झगड़ा करना, ऐसा काम करता था। अफसर से भी झगड़ा करता था मैं। घर में फिर गाली देने का कुछ ये नहीं, घर में किरकिर होने का कोई शांति नहीं था, बिल्कुल कोई ढंग से बैठना प्रेयर करना ऐसा कुछ नहीं था। मैं दुनिया के इसमें रहने का, प्रभु में ज़्यादा टाइम देने का नहीं। मैं फिर मेरा एक गोरपुर में एक दोस्त था, बताया कि जज कॉल में जाओ, वहाँ पर आप प्रे करने से सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर आया हूँ, एक दिन पहले दिन आया जज कॉल में, फिर मेरे लिए प्रार्थना के लोगों ने, फिर मैं सर के दिन में 4 बार आना लगा यहाँ पर, 4 टाइम 3 टाइम। फिर ऐसा खुद प्रभु से मैं पूछ रहा हूँ, प्रभु मेरा कोई भी गलत माफ़ करना, क्षमा करना मुझे, और मेरी इससे छुटकारा दो प्रभु। ऐसा मैं प्रार्थना कर रहा था मैं। फिर भी मेरा इतना कि चलते गाड़ी में मैं आया चक्कर आने का, ऐसा मेरे को अंधेरा गिरने का, मैं डर गया। अभी मैं बचता कि नहीं बचता कोई गारंटी मेरा ऐसा नहीं था मेरा। फिर आज कई दिन के बाद फिर लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। यशायाह जो 41 में मेरे को बताया यहाँ पर आके, वो डरो मत मैं तेरा साथ है। धीरे धीरे मेरा जो तकलीफ था थोड़ा कम होने लगा, धीरे धीरे सब कुछ, गुस्सा, गाली बिली सब चेंज होगा मेरा लाइफ यहाँ पर। अभी मैं बहुत ठीक हूँ प्रभु की इच्छा से, प्रार्थना से। डेली प्रभु को 1 घंटा मैं देता हूँ यहाँ पर। मैं लोगों को दूसरों को ले प्रार्थना करता हूँ, किस घर में तकलीफ है, कोई बच्चे पढ़ाई में है, कोई बीमार है, लोग मेरे को बताता रहता हमारे प्रार्थना को, अगर वो उनको भी सक्सेस हो रहा है। मेरा कुल लोग, मेरे फैमिली लोग ना भी मेरे से अच्छा रहता है। जितना कोई भी उनको लगा कि ये पहले से अभी कैसा चेंज होगा कुंडा, उनको मानना पड़ा कि अभी ये जस में चल रहा है, ऐसा है जहाँ पर है लोग। वो अब उधर लोग भी मुझे रिस्पेक्ट देता है वहाँ पर कि अभी प्रभु में है आदमी। मेरे परिवार में बेबी और बच्चे सब कुछ है, वो लोग भी प्रभु में मेरे साथ प्रभु में आगे बढ़ रहा है। वो लोग भी विश्वास में बढ़ रहा है प्रभु में, उनको भी प्रभु डर लगा है। अब मेरा लड़का भी इंजीनियर पढ़ता है, वो प्रभु में नहीं था, वो भी आजकल प्रेयर में है। ये पुनः प्रार्थना भवन के लिए और जस कॉल का और जिनकर उनका परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ब्लड गॉड ब्लेस यू।